जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ेंगे। इसमें देखिए, आप वर्नर्स पॉस्टुलेट्स के बारे में पढ़े हैं और वर्नर्स ने उसमें बॉन्डिंग के बारे में काफ़ी कुछ बताया था कि कैसे मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग होती है। बट बहुत सारी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो वर्नर्स ने एक्सप्लेन नहीं किया। उनके कॉन्सेप्ट में या उनके थ्योरी में या उनके पोस्टुलेट्स में बहुत सारी चीज़ें जो क्लियर नहीं हो पाई हैं। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए वर्नर्स के पोस्टुलेट। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट अगर हम डिस्कस करें, सो व्हाई ओनली सर्टेन एलिमेंट पासेस द रिमार्केबल प्रॉपर्टी फॉर्मिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो द क्वेश्चन इज दैट if metal and ligand can make the bonds, so why only the certain metal and certain ligands can bonding like this to form the coordination compounds? Why not all? Or what is the limitation or what is the special condition regarding this to follow the condition to follow the formation of coordination compounds? Next is that why the bond in coordination compound have directional properties. So what is the directional properties? According to the Werner's postulate, the metal and ligands are bonded, but electrons coordinated from ligand to the metal only. So this is the directional property in which metal accept the electron for the bonding and ligand give the electron or donate the electron to the metal only for the bonding. What is the reason behind this is not discussed or not cleared by the Werner's postulate. And the third is the why coordination compound have characteristic magnetic and optical properties. This is the very important property of the coordination compound, having the characteristic magnetic, optical as well as the color property. So friends, the question is that why coordination compound have the characteristic magnetic and optical properties. So these are the problems which cannot be solved by the postulates given by the Werners. So for explanation of this and many questions regarding coordination compounds, there are the many approaches have been put to explain the nature of bonding in coordination compound. Means there are the following theories regarding the coordination compounds. These are first valence bond theory. This is also VBT represented as a VBT. Next is the crystal field theory, that is the CFT. And next is the ligand field theory, that is the LFT. And the last one is the MOT, molecular orbital theory. So many problems can be solved by the valence bond theory. Few rest questions will be solved by the crystal field theory, and few questions will be solved by the ligand field theory or the molecular orbital theory. So these will discuss one by one in this video. Friends, I have already discussed about the coordination compound, its isomerism, the Werner's postulates and other properties of coordination compound in my different videos. So you may watch my video in Chem class online. So without passing the time, may I want to start the valence bond theory. Friend, this is a very important theory, that is the valence bond theory. As you know that the valence means the valencies. According to the valencies means number of electrons which donate or accept by any element is a valence electron. So I am proceeding the topic. According to this theory, the metal atom or ion
under the influence of ligand can use its d minus n minus d ns np or ns np nd orbital for the hybridization to yield a set of equivalent orbital of definite geometry such as the octahedral, tetrahedral, square planar और एक्सेट्रा। कहने का मीनिंग ये है जैसे 3D ऑर्बिटल हो गया, 4s हो गया एंड 4p हो गया। सो देखिए ये जो 3 है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है। सो डी वाले केस में क्या यूज हुआ, अगर इसको आप 3 इसको n मान लें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, सो इस केस में 4 4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 डी ऑर्बिटल हो गया। और ये कितना हो गया, ये हो गया 4s ऑर्बिटल और ये भी कितना हो गया 4p ऑर्बिटल हो गया। सो इसी हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है कि n माइनस 1 ns np ऑर्बिटल। तो मेटल जो होते हैं, मेटल्स डिफरेंट अपने ऑर्बिटल्स को यूज करते हैं और इन ऑर्बिटल्स की हेल्प से मेटल्स बॉन्डिंग करते हैं और ये ऑर्बिटल्स जो ओवरलैप करके या कहिए हाइब्रिडाइज्ड हो करके एक्विवेलेंट ऑर्बिटल के, एक्विवेलेंट मीन्स क्या होता है, नियरली सिमिलर एनर्जी के ऑर्बिटल्स बनाते हैं और इन ऑर्बिटल्स को हम लोग हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहते हैं और इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। आपने 11th के क्लास में हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है, उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होता है, तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल किसके बीच में होता है, मेटल के लिगैंड के ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाते हैं और इन ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ओवरलैप करते हैं और इस तरह से वो एक डेफिनेट ज्योमेट्री तैयार करते हैं और एक शेप क्रिएट होता है, स्पेस में शेप क्रिएट होता है जिससे उस कंपाउंड का ज्योमेट्री, डेफिनेट ज्योमेट्री डिसाइड होता है। साथ ही इसमें दो चीज़ आपको और ध्यान देना है। देखिए कि अगर कहीं पर भी किसी भी डी ऑर्बिटल में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, अगर कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो वह कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होगा। ध्यान दीजिएगा, वह कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। और साथ ही साथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने पर वह कलर्ड हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है आपको, वह कलर्ड हो जाएगा। और इसके साथ साथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कि वो पैरामैग्नेटिक होगा, वो कलर्ड होगा और उसकी स्पिन जो होगी, अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन जो होगी उसे हम लोग हाई स्पिन कहेंगे। और इसी तरह से अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है, अनपेयर्ड का मतलब समझते हैं, जैसे देखिए ये डी ऑर्बिटल है, तो इसमें ये 1 2 3 4 5 दीज आर द 5 सब सेल्स ऑफ दिस ऑर्बिटल्स। सो इसमें अगर मान ले तो मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे सेकेंड इलेक्ट्रॉन है, ये थर्ड इलेक्ट्रॉन है, फोर्थ, ये फिफ्थ, तो इस तरह से यहाँ पे 5 अनपेयर्ड कंडीशन है। अब मान लीजिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और है तो ये पेयर्ड हो गया। अब इस तरह से इसमें 4 अनपेयर्ड कंडीशन बचे। मान लो यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन था, अभी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से अगर सारे इलेक्ट्रॉन इसमें 2 2 इलेक्ट्रॉन हैं, सो यहाँ पे अनपेयर्ड कितने हो गए, 0 हो गए। तो अगर अनपेयर्ड 0 है तो उस केस में इसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर होगा वो डायामैग्नेटिक हो जाएगा। तो मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो जाएगा, वो डायामैग्नेटिक हो जाएगा। और उसका जो कलर है, कलर क्या हो जाएगा, वो कॉम्प्लेक्स जो है कलरलेस हो जाएगा, उसमें कलर नहीं रहेगा। और उसका जो स्पिन होगा वो लो स्पिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो
लो स्पिन हो जाएगा, वो कॉम्प्लेक्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोला जाएगा अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो हैं। तो अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसे हम लोग हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पर ये अनपेयर्ड कंडीशंस है। सो फ्रेंड्स, यही है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ स्पेशल्स जिसको हम लोग डिस्कस किया अभी। अब हम लोग जो है थोड़ा सा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एक चीज़ और है। देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो बेसिक है वो है कि कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे ये मेटल है तो मेटल के साथ ये लिगेंड लगा, तो जब एक लिगेंड लगेगा तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 1 होगा। इस तरह से अगर 2 लग गया तो 2 हो गया, सो 4 लग गया तो क्या हो गए, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गए तब 4 हो गए। इसी तरह से 6 लग जाएगा लिगेंड अगर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। मतलब ये कि अगर हम सिंपली ऐसे लिखें कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स है और उसका फार्मूला जो है ऐसे है Ml4 और इससे ब्रैकेट क्लोज है, तो इसको कहेंगे हम कि यह जो है ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं 4 है। ऐसे ही अगर कोई कॉम्प्लेक्स इस तरह से लिखा हुआ है कि Ml6 है, तो हम कहेंगे कि यह एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। और अगर किसी केस में यहाँ पे 5 है तो हम कहेंगे कि यह ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है। सो फ्रेंड्स, अब देखिए एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन निकल के इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आती है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उस केस में दो तरह की 2 टाइप के हाइब्रिडेशन हो सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, एक है sp3 हाइब्रिडेशन और सेकंड है dsp2 हाइब्रिडेशन। देखिए sp3 हाइब्रिडेशन पहला हुआ और दूसरा हो गया dsp2 हाइब्रिडेशन। अभी इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये दोनों में से कौन सा हाइब्रिडेशन और कैसे वह बनेगा, ये sp3 होगा कि dsp2 होगा। बट पहले अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे इस पर भी काम करेंगे। तो अगर वो sp3 है या dsp2 हाइब्रिडेशन है तो ज्योमेट्री भी बदल जाएगी। जैसे कि अगर sp3 है तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो जाएगी, उस ऑर्बिटल उस मॉलिक्यूल का कॉम्प्लेक्स का जो हाइब्रिडेशन होगा वो sp3 होगा। और अगर dsp2 है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर होगा तब वो। ऐसे ही अगर हम 5 देखें तो sp3d है ना, तो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, जिसको हम लोग TBP से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे TBP सिंपली लिख देते हैं, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। और अगर 6 है तो 6 के 2 कंडीशन अपीयर हो रहे हैं यहाँ पे, sp3d2 और d2sp3। देखिए sp3d2 और d2sp3, तो दोनों केसेस में जो ज्योमेट्री बनती है वो ऑक्टाहेड्रल बनती है। पर क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि sp3 कब होगा और d2sp3 कब होगा। सो ये भी बात पता करना बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, ये जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वैसे तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी टॉपिक है। सो इसको बड़े मन लगा करके आप देखिए और आपको एक एक टॉपिक एक एक चीज़ बड़ी अच्छे से समझ में आएगी। सो अगर मैं कोई एक कॉम्प्लेक्स लेता हूँ पहले, जैसे कि हमने ले लिया, ये एग्जांपल ले लिया CuNH3 का 6 और इसके ऊपर जो है ये पावर 3 का प्लस लगाए हुए हैं। तो एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ पहले, चलिए एक ब्लैंक पेज लेता हूँ और फिर हम जो है इस पर डिस्कस करते हैं। अब जैसे देखिए अगर हमने कॉम्प्लेक्स लिया, क्या लिया था कॉम्प्लेक्स, हमने कॉम्प्लेक्स लिया था CuNH3 का 6 है और इसके ऊपर यहाँ पे 3 प्लस थे, ठीक है, ये 3 सॉरी इसके ऊपर यहाँ पे 3, ये प्लस है, यहाँ पे प्लस है। इसमें थोड़ा सा लिखने में हमको प्रॉब्लम आ रही है, मैं थोड़ा सा स्केच बदल देता हूँ, पहले थोड़ा सा और फाइन ले लेता हूँ। चलिए ठीक है, कलर भी चेंज कर देता हूँ, कलर ले लेता हूँ, चलिए रेड ले लेता हूँ,
ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स क्या है देखिए, इसमें जगह नहीं पूरा ले रहा है। CO कॉम्प्लेक्स हमारे पास है CONH3 का 6 और इसके ऊपर 3+ चार्ज है। ठीक है, ऐसे कॉम्प्लेक्स हमारा है। सो अब हम जो है इस पर काम कर रहे हैं कि देखते हैं कैसे जो है इसमें हाइब्रिडेशन क्या होगा और इसका स्पिन क्या होगा। ठीक है। सो फ्रेंड्स, इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि पहले ये जो मेटल है, इस मेटल का हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ इसके ऑक्सीडेशन नंबर का भी देखना पड़ेगा कि किस ऑक्सीडेशन नंबर में है और ये किस ऑक्सीडेशन नंबर में है और उस कंडीशन में इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है। ठीक है। सो देखते हैं। देखिए जो ये मेटल है हमारा, ये मेटल है कोबाल्ट। तो हम पहले आपको एक चीज़ बताते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल का जो सीरीज है 3D सीरीज है ना, 3D सीरीज, तो 3D सीरीज में जो एलिमेंट हैं वो है पहला स्कैंडियम, फिर है टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये देखिए स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है, ध्यान दीजिएगा। जो स्कैंडियम है, स्कैंडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 21 होता है, 21। और जो टाइटेनियम होता है उसका होता है 22। और ऐसे ही जिंक तक जाएंगे तो स्कैंडियम से जिंक तक यहाँ पे 21 और यहाँ पे 30। तो आपको ये सीरीज अच्छे से लर्न कर लेनी है। वैसे तो आपको 11th में ही लर्न हो गया होगा, लेकिन हो सकता है कि किसी को ना याद हो, तो आप इसको क्या करिए कि इसको प्रॉपरली लर्न कर लीजिए। वैसे एग्जाम में क्वेश्चन जब आता है तो दिया रहता है, पर किसी किसी केस में और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में एटॉमिक नंबर भी नहीं दिया रहता है, तो उसमें प्रॉब्लम आती है। तो आपको मेरा यही सजेशन है कि आप इसको अच्छे से लर्न करें। सो देखिए हम लोग जो है आते हैं अपने कॉम्प्लेक्स पर और उस पेज पर आते हैं NCERT के, जहाँ से हमने इसको पढ़ना शुरू किया था। देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें हमको ये कॉम्प्लेक्स मिला है, क्या है कि कोबाल्ट है ना, और NH3 के कितने हैं, ये 6 हैं और उसके ऊपर 3+ चार्ज है। तो अब ऑक्सीडेशन निकालना है नंबर हमको। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, देखिए कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है। फिलहाल ऑक्सीडेशन नंबर में एटॉमिक नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने इस कोबाल्ट को मान लिया X + 6 और एक NH3 का होता है 0 और इक्वल टू दी यहाँ पे +3 आएगा क्योंकि उसके ऊपर पावर 3 है। तो इस तरह से X + 0 इक्वल टू दी 3 है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि X इक्वल टू दी 3। तो X इक्वल टू दी 3 मतलब कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है, 3rd ऑक्सीडेशन स्टेट पर कोबाल्ट है। अब देखिए हमें क्या करना होगा इसमें कि हमें सबसे पहले इसमें कोबाल्ट एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। ठीक, तो ये कोबाल्ट रहा। तो यहाँ पे आप ऐसे लिखिएगा 27। देखिए अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो कैसे लिखेंगे वो भी देख लीजिए, फिर इसका शॉर्टकट भी मैं आपको बताता हूँ। ये होगा 1s2, ये 1s लिखा था मैं, 1s2 फिर 2s2 फिर 2p6 फिर 3s2। देखिए इतना कितना हुआ, 4 और 6 10 है ना। 3s2 3p6 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और फिर इसके बाद 3d और
4s। इतना पहले आप काउंट कर लीजिए। देखिए ये 2 2 4 हो गया और 6 10 हो गया, और ये 2 काउंट किया तो 12 हो गया, और 12 में से 4 ऐड किया तो कितना हो गया, 16 हो गया। अब ठीक है, देखिए 4 2 6 6 12 और 4 16, तो 16 हो गया। अब जो है हमें करना क्या है कि जितना भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी का हो, निकालना हो आपको, जैसे आप यहाँ पे लिखे कोबाल्ट, यहाँ लिखा 27। अब कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है तो ऐसे लिखिए AR मतलब क्या है, आर्गन है, और यहाँ पे लिखिए 3D, और यहाँ पे लिख दीजिए 4s। तो अब देखिए मैं शॉर्टकट दे रहा हूँ आपको। ये जो 2 है, तो स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने हैं सभी के ये 2 जो है, इस 2 को S पर डाल दीजिए, तो ये 4s2 हो गया। और यह जो 7 बचा है, इस 7 को D पर डाल दीजिए, तो क्या बन गया कॉन्फ़िगरेशन, AR 3D 7 4s2 बन गया ना। पर एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, क्रोमियम और कॉपर का केस इससे अलग होगा। क्रोमियम और कॉपर के लिए यह एप्लीकेशन नहीं है, वहाँ पे इसकी लिमिटेशन है इस शॉर्टकट का। तो मैं उसको आपको बाद में बताऊंगा कि क्रोमियम कॉपर में ऐसा क्यों होता है और उसको कैसे यूज करेंगे। पर इतना ध्यान दीजिए कि क्रोमियम और कॉपर केस में ऐसा नहीं होगा। तो किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन निकालना हो तो हम क्या निकालेंगे, 3D 7 और 4s2। कैसे आया, ये जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, सो 27 नंबर्स में से ये जो 2 है इसको हमें D हमेशा S पे डालिएगा, और ये 7 जो है उसको हमेशा D पर डाल दीजिएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन तैयार हुआ 3D 7 4s2। एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हम ले लेते हैं आयरन का, Fe का। तो Fe कितना होता है, 26 होता है ना। तो क्या लिखेंगे, AR, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दीजिएगा, ये 18 है, ठीक है। आर्गन का एटॉमिक नंबर यहाँ पे 18 होता है, तो AR। अब यहाँ पे आप लिखेंगे 3D और फिर लिखेंगे 4s। तो ये जो 2 है S पे डाल दीजिए, तो 4s2, और ये जो 6 है उसको कहाँ डाल दीजिए, इस D पर डाल दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 3D 6 और 4s2। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आयरन, ठीक है। तो समझता हूँ आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखने आया होगा। अगर कम प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको मैसेज करिए, मैं उसको क्लियर करूँगा। तो हमने कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन लिखा था ना, तो हम लोगों ने लिखा था कि कोबाल्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन हमें मिला था वो था 3D 7, यहाँ पे AR था आर्गन, 3D 7 और 4s2। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और था कि कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट था वो 3 स्टेट में था। तो अब ये जो है CO3+ है, हमको इस कॉम्प्लेक्स में ये जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में जो आयरन जो कोबाल्ट है उसकी कंडीशन कितनी है, +3 स्टेट में है। तो +3 हुआ, तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा वो ध्यान से आपको देखना है। देखिए जब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज होते हैं या इलेक्ट्रॉन निकलते हैं किसी भी एलिमेंट से, तो पहले 3D सीरीज की अगर हम बात करें तो पहले 4s से निकलेगा, फिर बची हुई इलेक्ट्रॉन की नीड अगर है तब वो D से निकलता है। तो इसका मतलब कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो 4s से निकला होगा और 1 इलेक्ट्रॉन जो है इस D से निकला होगा। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन अब क्या बन जाएगा, तो ये कंडीशन बन जाएगा 3D 6 और 4s 0, ठीक है फ्रेंड। तो ये 4s 0। अब ऐसा नहीं कि ये 0 है तो ये ऑर्बिटल ही ख़त्म हो गया, तो ये ऑर्बिटल है, अभी यहाँ पर ये ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो यह इसके सक्सेसिव ऑर्बिटल कौन कौन से हैं जिसमें यह ओवरलैपिंग या बॉन्डिंग कर सकता है, हमें उसे लिख लेना है। पहले उसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे हम, पहला इसका है ऑर्बिटल 3D है, फिर 3D के बाद कौन आया था, मैंने आपको बताया था 3D के बाद 4s आता है, और इसके बाद 4s के बाद कौन आता है, 4p आता है। तो फ्रेंड देखिए 3D में कितने खाने होते हैं, इस तरह से 5 सब सेल्स होते हैं। तो आप ऐसे बनाइए 1 2 3 4 5। 4s में केवल 1 होता है तो ऐसे 4s बना दीजिएगा, और फिर 4p में कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो ये 3 ऐसे बना दिया आपने। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन D ऑर्बिटल में इसके प्रेजेंट हैं वो बना लीजिए। तो हमने जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा था वो क्या लिखा था, 3D 6 लिखा था ना, और 4s 0। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 3D को 6 को यहाँ भर लेना है। तो ये हो गया फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक,
सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 1 इलेक्ट्रॉन बाकी बचा हुआ है, ये आके यहाँ पे पेयर किया। और 4s में 0 है इलेक्ट्रॉन और 4p में भी 0 है। वो सक्सेसिव ऑर्बिटल्स 4s और 4p उस लेवल में पड़े हुए हैं, वो वैकेंट है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, पर ये ऑर्बिटल्स वहाँ पे हैं। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक चीज़ और होती है, देखिए मैं आपको बताऊँगा। जैसे कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जिनके कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन के होते हैं, और कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जिनके कॉम्प्लेक्स लो स्पिन के होते हैं। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एक लिमिटेशन है कि ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। उसमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आएगा तब जाके क्लियर होता है। तो यहाँ पर हमको एक चीज़ मान लेना है कि जो NH3 है ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो लो स्पिन कब होता है? जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये जो NH3 है ये इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कराता है, ठीक है। तो ये क्या किया है कि यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको, ये जो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ये इसमें आके पेयर कर देगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे पेयर कर देगा। इस तरह से ये तो भर जाएंगे, ये भी भर जाएगा, ये भी कम्प्लीटली भर जाएगा, ये भी भर जाएगा, लेकिन यह दो ठो वैकेंट हो जाएंगे, है ना। सो इस तरह से अब देखिए क्या होगा कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को बनाएं, सो देखिए कंडीशन ये बनेगी कि ये भी पेयर हो जाएगा, ये भी पेयर हो जाएगा, और ये भी पेयर हो जाएगा। ये दोनों में इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे। यहाँ पे 2 ऑर्बिटल ऐसे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, खाली है, और यहाँ भी खाली है और यहाँ भी खाली है। सो अब जो है अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है, ये जो लिगेंड है, अमोनिया के लिगेंड की तरह बिहेव करता है, और इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 पेयर इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। सो ये 1 पेयर इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है कि 1 पेयर यहाँ पे डी वाले पार्ट में, 1 यहाँ पे, 1 पेयर यहाँ पे, और इस तरह से 3 पेयर को यहाँ पे ऐसे कोऑर्डिनेट कर देता है। सो देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 2 ठो डी हो गए, मैंने D2, 1 S हो गया तो S, और P के कितने ऑर्बिटल यूज हुए हैं? 3। सो ये कितने हो गए? D2sp3। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। तो ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया क्या कि D2sp3। सो इस कॉम्प्लेक्स, वो कॉम्प्लेक्स कौन सा है? CuNH3 का 6। इस कॉम्प्लेक्स में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो D2sp3 होगा। कुछ और इन्फॉर्मेशन इससे निकल के आती है, वो क्या है? देखिए क्या उसकी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है कि हाइब्रिडाइजेशन तो D2sp3 हुआ, तो कंडीशन कैसे बनी थी? हमने ऐसे देखा कि इसमें D के 3 ऑर्बिटल ऐसे हैं जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी है। सॉरी, ऐसे बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी है। अब इसके जो 2 ठो डी के, ये डी के हो गए, 1 S के और 3 P के ऑर्बिटल्स, ये ओवरलैप करके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं। इन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है वो एक्विवेलेंट एनर्जी लेवल होती है, और इस तरह से ये ज्योमेट्री क्रिएट करते हैं। तो जब D2sp3 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन, तो कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री क्या होगा? उस केस में ज्योमेट्री होगा ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल क्योंकि यहाँ पे कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए यह कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? डायामैग्नेटिक होगा। नेक्स्ट, इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं तो इसलिए कलरलेस होगा ये, तो ये कॉम्प्लेक्स जो है कलरलेस हो गया, इसमें कलर नहीं आएंगे। इस तरह से ये जो है कॉम्प्लेक्स हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट होता है, और ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, ये भी क्लियर है। लो स्पिन कब होगा? जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, तो ये लो स्पिन हो गया। सो इस तरह से आप जो है सारी इन्फॉर्मेशन इसके कलेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपनी कॉपी पर 1 बाई 1 इस चीज़ को नोट करिएगा, और एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन यहाँ कलेक्ट करेंगे कि यह कॉम्प्लेक्स कैसा है। नंबर 1, यह कॉम्प्लेक्स जो है लो स्पिन है, यहाँ पे लिखेंगे लो स्पिन। नंबर 2,
हाइब्रिडेशन कौन सा है, D2sp3 है। नंबर 3 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। नंबर 4 डायामैग्नेटिक है ना। नंबर 5 में क्या लिख सकते हैं, कलरलेस लिख लीजिए, ये भी लिख लीजिए कि ये कलरलेस है। इस तरह से इतनी इन्फॉर्मेशन आ गई। तो एग्ज़ाम में क्या पूछता है, एग्ज़ाम में दे देता है कॉम्प्लेक्स का नाम और कहता है इसकी ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक बिहेवियर पे डिस्कशन करिए। तो बस इतना ही जो अभी आपने इसको पढ़ा, यही सारी चीज़ों को बताना है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो पे बने रहिए और इसको देखते रहिए। मैं अगले वीडियो में और कुछ चीज़ें और हाई स्पिन को लेकर आऊँगा। सो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।